So back to cricket now. Remind you, Sara Indian won the toss. They decided to field first. Beautiful climate, but today's a hazy overcast condition. Cloudy day here at the historical Parshuram Tawde Stadium, Bhiwandi. Three umpires on the ground. Umpire Vilas Jadhav, umpire Shakil Koti, and umpire Momin, Hassan Momin. जानवी आपको अपने ओपनर्स भेजना है. यस, टू रिकॉग्नाइज ओपनर Shahid Khan, the informed batsman with Amash Balere. Yes, look at that beautiful view from Prince Movies, like a similar international class. Both opener on the ground, Shahid Khan and Amash Balere. Amash Balere is such a dangerous batsman with left-hand batsman Shahid Khan. A lot will depend on these two as far as Janvi Sports are concerned. Anand Takene is included in Sara Indians. Harish Thakre, Dilip Patil, a lot of experienced campaigner in Sahara Indian side. The second quarter-final game of Deputy Mayor Trophy 2017 Bhiwandi. This is live from historical Parshuram Tawde Stadium of Bhiwandi. And this is the view of Players Pavilion. And this is the side of Janvi Sports. Kaleem, Abu Saad, Tausif, Wasim, Shahbaz Memon, Captain Ravish. Probably Shahid Khan will take the strike for the first ball. Yes. Yes, Ajay Garat, lot of depend on Shahid Khan and Amash Balere. Both are in good touch, like Shahid Khan who played a superb knock in Agri Raja Cup Pimplas, and equally played in Mapoli, but departure of Shahid Khan and Amash Balere, the Janvi's collapse in Mapoli cricket dhamaka. And you know what is the biggest question in this game? Yes, this is the clear answer from me, because lot of depend on these two. First ball, Shahid tried to drive, thick outside edge, rose to fly slip, no runs. The biggest question is that can Amash Balere play the 6 overs, all 6 overs? Yes, this is the big question, because it does not want here goes away this time, finished away. What a shot! Past the extra cover, racing all the way to the boundary for 4. Delightful stroke played by Shahid Khan.
from the fielder, enough time batsman gets one. Not a connect properly middle of the bat. But he played in the gap. Not quickest of outfield there. He tried to play a square drive away from his body. 9 for no wicket. Now Shahid having a word with Amash Balere. He is a very hard hitting batsman and like some psycho player in Taluka cricket. This time goes his back foot and Amash punched as ball. Leg break in covers and with the Stokey off the mark. So Amash Balere on 1, Shahid Khan on 9. End of the first power play, 10 without loss. एक ओवर की समाप्ति 10 रन. अजय गरत, बात यह है कि जाह्नवी के पास जिस तरह की गेंदबाजी है, अगर ये 60 के करीब रन रखते हैं तो फिर टेस्ट कर सकते हैं बल्लेबाजी को. बहुत अच्छी शुरुआत जाह्नवी की और शाहिद खान की. बिल्कुल. और यदि ये दो बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं जाह्नवी स्पोर्ट्स के लिए. सहारा इंडियंस ने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया था. एक अच्छी शुरुआत अभी तक जाह्नवी स्पोर्ट्स के लिए. शाहिद खान ने दो बहुत ही खूबसूरत चौके जड़े. और अब हमारे बीच बबलू टाइगर जुड़ते हुए अनफिट होने की वजह से नहीं खेल रहे हैं. 1 ओवर 10 रन. गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है किरण को, जबकि करण कप्तान इस वक्त पॉइंट पर हैं. किरण पहली गेंद बैकफुट पे गए, कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, 4 रन. क्या यह अहमद बलेरे का शॉट है जो ऑफ साइड में आप खेलना शुरू कर चुके हैं? नहीं, क्षमता है उनके अंदर. हालांकि उन्होंने वो ज्यादा दिखाया नहीं है सिटी क्रिकेट में. मैंने उनको देखा है ग्रामीण में भी खेलते हुए ऐसे शॉट्स खेल सकते हैं. और ये देखिए बिल्कुल गेंद के बाउंस के ऊपर आते हुए. अब कई बैट्समैन हैं जिन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है. यशपाल माली ऑफ साइड में खेल रहे, कुमार ऑफ साइड में खेल रहे हैं और अब अहमद बलेरे. किरण इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद को ऑफ वॉली पे लेके गैप में गेंद जा रही है. 1 रन पूरा किया है. मिसफील्ड हुआ वहां पर, 2 रन पूरे किए. अहमद पहुंचे 7 पर और जाह्नवी के स्कोर को पहुंचा दिया 16 रनों पर. इसके बाद का जो मुकाबला है एनआर बनाम विहान मीत कुमार, वो जुमाबाद खेला जाएगा. इस समय संघर्ष टैलेंट बनाम अनुभव. इस मरतबा फुल टॉस गेंद भेज दिया, गेंद को 6 रन. कैच भी छूटा और सिक्सर भी वहां पे दे दिया खिलाड़ी महेश ने. जी हाँ, भड़कीले बल्लेबाज है. ये देखिए भाग्यशाली रहे, हाथ लगा लेकिन निकल गई बाहर 6 रनों के लिए. वहां पे महेश थे जिनसे कैच छूटा है. स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है. तेज शुरुआत अभी तक जाह्नवी स्पोर्ट्स के लिए. किरण काफी युवा गेंदबाज है. गेंदबाजी कर रहे हैं किरण. दोनों बल्लेबाज अब अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं. एक और ऑन ड्राइव किया है आउटफील्ड में, 1 रन बना. मिसफील्ड, अच्छा कॉल, 2 रन पूरे. अब रन बहुत तेजी से बन रहे हैं जाह्नवी के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पे पहुंचा है. अब ये जो रन बनते हैं मिसफील्ड की वजह से, वो चेसिंग में दबाव बढ़ाते हैं टीम पर, जैसा कि पिछले मैच में हमने देखा था. पंडित गुलवी हमसे जुड़ते हुए, नफीस अंसारी हमसे जुड़ते हुए, दोनों का इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है. सलीम भी जुड़ते हुए. वीरेन का सपना खत्म हो गया.
अहमद बलेरे को हवा में स्ट्रोक और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अहमद बलेरे आउट हो गए डीप में, ज्यादा सब्र से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। यही सबसे बड़ी कमी उनके बल्लेबाजी में नजर आई है। किसी भी बॉलिंग आक्रमण को तहस महस करने की क्षमता उनके अंदर है, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं क्रीज पर। जल्दी में रहते हैं हमेशा। कितने पे आउट हुए अहमद? एक चौका एक सिक्सर, जरा 15 रन बनाए। बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत दी अपने टीम के लिए। जितने रन वो बनाते हैं उससे कई बेहतर बैट्समैन है, मैं समझता हूं। बहुत अच्छा कैच लिया डीप में। अभी थे फील्डर। अब ऐसे बैट्समैन अगर आखिर तक टिक गए तो क्या हो सकता है, आपको भी पता है। वही तो बहुत बड़ा सवाल था इस मैच में कि क्या अहमद पूरे 6 ओवर्स खेल पाएंगे। उत्तर मिलता हुआ। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं रोहित। ये बिल्कुल रोहित शर्मा के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। नाम भी रोहित है और खेलते भी रोहित शर्मा के अंदाज में। शाहिद खान इस वक्त 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है और 6 गेंदों में 15 रन बना के अहमद आउट हुए। इस मरतबा ड्राइव हवा में, बढ़िया कोशिश, लेकिन क्या छूट आए वहां पर। बहुत बढ़िया कोशिश। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर है जानवी का 25 रन 1 विकेट कमाने के बाद। बहुत बढ़िया कोशिश की थी। अनंता मेरे ख्याल से वहां पर थे, अनंता केने। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त एफर्ट था वहां पर अनंता केने का। भले ही कैच छूटा है लेकिन कोशिश के लिए उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पिछले मैच में कुछ ऐसा ही एफर्ट हमने देखा था कासिम बाबू द्वारा। ये प्लेस पवेलियन, अहमद बलेरे, शहबाज मेमन, दोनों बैट्समैन कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं। टीम मीटिंग भी होती भी, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छा टोटल नजर आ रहा है जानवी स्पोर्ट्स का। 70 प्लस हमने देखा है कि इस विकेट पे चेसिंग बहुत मुश्किल रहता है। सिर्फ बालाजी स्पोर्ट्स ऐसी है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। कल धनेश ने चारों शाने चित कर दिया मराठा पंजाब को। जी हाँ, 70 प्लस एक अच्छा स्कोर है। हालांकि सेफ होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन एक अच्छा स्कोर जरूर रहेगा यदि 70 प्लस जाते हैं तो। बिल्कुल। इस सीजन की पूरी बात करता हूं मैं अजय गरत के। इस सीजन में कुछ भी सेफ नहीं है। सेफ सिर्फ चल रहा है तो सिर्फ क्रिकेट चल रहा है। कमेंटेटर्स भी सेफ नहीं है। गेंद कमेंट्री बॉक्स में भी आ रही है। इस साल तो 2 मरतबा, एक मरतबा शाहिद खान का स्ट्रोक आया था और उस दिन जयेश का स्ट्रोक आया था उस्मानिया के। अभी कंटिन्यू ड्राइव करना चाहता, क्लोज ऑफ द बॉडी ऑन द अप खेलना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर पे गेंद गई गली में, 1 रन। हालांकि एतमाद से नहीं खेल पाए थे शाहिद खान। 10 पे पहुंचे शाहिद खान, कुल स्कोर 26 पे पहुंचा। अभी का भी अच्छा स्टाइल है, कैप को उल्टा पहनते हैं। ग्रेग मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया के थे जो उल्टी टोपी पहन के गेंदबाजी करते थे। और रवि शास्त्री ने जब सिंगल निकाल के महेंद्र सिंह को दिया था तो उनको एलबीडब्ल्यू किया था और बैंगलोर टेस्ट टाई पे समाप्त हुआ था। यानी कि उल्टी टोपी वाले। अभी का सामना करेंगे रोहित। शाहिद खान को इस वक्त हुसैन राजस्थानी ने ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फ्लैश करना चाहते थे। मिडवे ऑफ स्टंप के बाहर वाइट, पीछा किया था उस गेंद का। हमारे सबसे प्रिय क्रिकेट लवर जीतू भीड़ की शायद नींद अभी तक नहीं खुली है। छोटी गेंद पुल किया हवा में और रोहित आउट। बहुत बढ़िया गति परिवर्तन किया था वहां पे अभी ने। जी हाँ, चेंज ऑफ पेस काम करता हुआ वहां पर अभी के लिए बड़े विकेट का पतन हुआ है।
रोहित एक बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे। दूसरा झटका जाह्नवी को लगता हुआ। ये देखिए, इंतजार किया उन्होंने, रुककर खेले थे लेकिन प्लेसमेंट नहीं था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक अच्छा कैच लिया महेश ने। खाता नहीं खोल पाए रोहित। इस बड़े मैच में निराश किया उन्होंने अपने समर्थकों को। नए बल्लेबाज कलीम, नए बैट्समैन कलीम बल्लेबाजी को आए हैं। सागर बोयर सरोली ने कहा है कि काफी क्रिकेट हो रहा है ग्रामीण में, सिटी में जितनी स्पर्धाएं हो रही है सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है ग्रामीण में, सिटी में। अभी शाहिद को स्वीप कर दिया है गैप में, 4 रन। माइकल हसी का अंदाज शॉट के पीछे, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। बढ़िया प्लेसमेंट शाहिद खान का। शाहिद खान अच्छे टच में आज नजर आ रहे हैं। 3 चौके अब जड़ चुके हैं। बल्ले के बीचों बीच लिया था, टाइमिंग भी बहुत बढ़िया थी उनकी और प्लेसमेंट भी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद आज थोड़ा सर नीचा रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं, बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके आउट होने के बाद कई मर्तबा जाह्नवी की जो बल्लेबाजी है उसकी जान ही निकल जाती। दोस्तों, दोपहर में हमारे बीच रहेंगे शक्ति कपूर और रजा मुराद, आवाज की दुनिया के बादशाह। इस मैच के बाद ब्रेक रहेगा और जुमा बाद तीसरा मैच खेला जाएगा। इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया, लगातार गली पे पुश कर रहे। हालांकि क्रिकेट की गली और महबूब की गली दोनों के ज्यादा चक्कर अच्छे नहीं होते हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन। बत्तीस रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 चलता हुआ। आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1883 में बिली बार्नेस इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने हैट्रिक लिया था, जो टेस्ट क्रिकेट का दूसरा हैट्रिक था। अभी बहुत अच्छी गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया वहां पर, खुद बीट हुए और अंपायर को देख रहे हैं कलीम। स्लोवर 1 लेकिन ठिकाने पर थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। काफी टर्न उसमें देखने को मिला। कई मरतबा हम देखते हैं हमारे भिवंडी सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट में कि बल्लेबाज अपनी खामी छुपाने के लिए अंपायर की तरफ जरूर देखता है, चाहे फिर कलीम हो या चाहे कितना बड़ा भी बैट्समैन हो। फिर से दूर से खेला, इस मरतबा वाइट। कलीम, आपको अंपायर पे फैसले को छोड़ना है। टेलीकास्ट जा रहा है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पे पहुंचा है। अभी छोटी गेंद, पहले ही खेल बैठे, काफी कठिनाइयों में, और रनआउट की अपील भी वहां होती हुई, लेकिन अपनी क्रीज में वापस आ गए थे। काफी कठिनाइयों में है, इतनी छोटी गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 33 रन। 3 चौकों की मदद से शाहिद खान 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अहमश 15 रन की धुआंधार बल्लेबाजी के बाद आउट हुए। रोहित ने खाता नहीं खोला था, 0 पे आउट हुए थे। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड ऑफ द 3rd ओवर। यानी कि 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए जाह्नवी स्पोर्ट्स के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि शाहिद खान अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर। 3 के आंकड़े इस समय स्कोर बुक में नजर आते हुए स्कोर कार्ड पर। 3 विकेट गिरे हैं। टीवी स्कोरर वहां पर 3 विकेट उनको करना चाहिए। इस वक्त अमित, अनिकेत और बॉबी ने जाह्नवी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है और उप महापौर कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी।
समय में कॉपरेट करना है प्लीज। बल्कि 2 ही विकेट गिरे हैं, हम क्षमा चाहते हैं। तो पूरे 3 के आंकड़े तो नहीं है। तौसीफ जिनका आना अभी बाकी है, वसीम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस सत्र में। आसिफ नाना को भी वहां आप देख रहे हैं, अबू साद, अहमद बलेरे, शहबाज मेमन, रोहित। किरण आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 15 रन हालांकि खर्च किए थे। ये बहुत ही साहस भरा फैसला सहारा इंडियंस के कैप्टन का। भले ही महंगे साबित हुए पहले ओवर में, लेकिन भरोसा जताया है कैप्टन ने उनके ऊपर। कमेंटेटर संदेश पाटिल ने शाहिद खान को ऑल द बेस्ट कहा है, tenniscricket.in के, जिन्हें आप जरूर सुनेंगे लेट देवीदास कप 2017 में। फील्डिंग की जमावट, 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑन साइड में शाहिद खान के लिए, एक दायरे के अंदर, ऑफ साइड में 2 बाउंड्री पर और 2 सर्कल के अंदर। शॉर्ट पिच गेंद पुल और हवा में गेंद सक्सेसफुल, 6 रन। एक लम्हे तो शाहिद खान का जो कलेजा है वो हलक को आया होगा। ऐसे मुझे भी लगा था जिस तरह पोजीशन ले रहे थे वहां के फील्डर, क्या गेंद अंदर रहेंगी या बाहर, लेकिन गेंद को क्लियर करते हुए मिड विकेट बाउंड्री पर, ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट, शॉट हम पुल और गेंद ठीक मिड विकेट के सिर के ऊपर से 6 रन। अब सर पे से पानी जाए या गेंद, दोनों सूरतें अच्छी नहीं रहती है। शाहिद खान के बल्ले से निकलने वाला यह पहला सिक्सर इस पारी में। कुल मिलाकर पारी का दूसरा छक्का, एक छक्का लगाया था अहमद ने, और दोनों भी सिक्सर जो लगे हैं वो किरण की गेंदों पर। प्रेशर में आ गए हैं गेंदबाज। कहीं ना कहीं सोच नजर आ रही है बल्लेबाजों की कि युवा गेंदबाज को टारगेट बनाया जाए। बिल्कुल, वेल बिगन इज हाफ टर्न। अच्छी शुरुआत यहाँ पर जानवी की हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिलीप पाटिल थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। कप्तान करण लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे हैं। समीर तांगड़ी जाकर गेंदबाज के साथ खड़े हैं। बॉलिंग अटैक हालांकि अच्छा है सहारा इंडियंस का, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है। एक अच्छी पारी यहां पर खेलते हुए शाहिद खान अपनी टीम के लिए। सूझबूझ भरी पारी अभी तक देखने को मिली है। हाजी समझ से एंड से किरण गेंदबाजी करते हुए, प्लेयर्स पेविलियन में खुशी का वातावरण। दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा। पहले खेलने का इरादा था वहां पर शाहिद खान का, लेकिन देखा कि काफी बाहर जा रही है, बल्ला हटाया गेंद की लाइन से। थोड़ा सा हताश है गेंदबाज। अच्छी वापसी, लेकिन उतना ही बढ़िया तरीके से उसको खेला है। हल्के से टर्न किया, दबाव बनाया फील्डर पर और 2 रन पूरे किए। This is the sensible cricket from Shahid Khan, who tucked away on the onside and taken an easy 2 runs. Class cricket from Shahid Khan. He moves up to help of 3 boundaries and 6. He moves up to 24. एक बार फिर से किरण, अपील वहां पर लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। रन पूरा करते हुए लेग बाय के रूप में शाहिद खान, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। Fine delivery. Shahid tried to left sweep, drop on his legs. There is a very loud shot for LBW.
No says by umpire Koti. Yes, right decision from umpire Shakil Koti, one of the big name in umpiring panel. बहुत अच्छा निर्णय, ऑफ स्टंप को मिस करती गेंद। दाया और बाएं हाथ की जो जोड़ी है वो लगातार बनी हुई है क्रीज पर। दोनों भी दायां हाथ के बल्लेबाज आउट हुए हैं, अहमद बलेरे और रोहित। ऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट नजर आता हुआ इस समय, जिसमें 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर 3 सर्कल के अंदर। उछाल दिया है, हवा में गेंद, बाउंड्री पर खिलाड़ी, उनके ऊपर से 6 रन। दूसरा सिक्सर इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला कलीम ने। कैलकुलेटेड 6, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर था। ये डेप्यूटी मेयर रिप्ले बताया जा रहा है। ये देखिए, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, गेंद हवा से बातें करती हुई 6 रन। समीर तांगड़ी को इस वक्त ऑल द बेस्ट है। हमें कारबारी, अल्पेश कर और राहुल आरके खरबाओं की तरफ से। चोटग्रस्त हो सकते थे वहां पर खिलाड़ी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर से स्लॉट में, और ये भी जाएगी बाहर। 6 रन और। दो धारी तलवार अब चल रही है गेंदबाजी पर। जो आ रहा है वो खा रहा है। पचास रन जानवी स्पोर्ट्स के पूरे होते हुए। देखते ही रह गए मिड विकेट के खिलाड़ी, उनके सिर के ऊपर से काफी दूर जाकर गिरती हुई बाउंड्री के बाहर गेंद। 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा ओवर जानवी स्पोर्ट्स के लिए घटता हुआ। 22 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं, और छक्कों की हैट्रिक का मौका है कलीम के पास। 1000 रुपयों का नकद इनाम जावेद फारूकी साहब की ओर से। अभी तक 6 बल्लेबाज छक्कों की हैट्रिक पूरी कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन मापोली क्रिकेट धमाका में 26 बैट्समैनों ने छक्कों की हैट्रिक की थी। अभी तक कुल मिलाकर 37 रन खर्च किया अपने स्पेल में किरण ने। काफी महंगे साबित हुए आज। पहले 2 मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन इस बार हल्ला बोल दिया दोनों भी बल्लेबाजों ने जानवी स्पोर्ट्स के। गति परिवर्तन, फुल टॉस बन रही थी, मौका वहां पर, निशाना चूकता हुआ, बल्ला भी छूट गया था हाथ से, बाल बाल बच गए, भाग्यशाली रहे कलीम। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। आखिरी गेंद काफी लूजनर थी, मानो गेंदबाज ने 1000 रुपए उछाल दिए थे कलीम की तरफ, लेकिन उसको बल्ले पे ले नहीं पाए थे। ओवर समाप्त होते हुए 4, जानवी एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। 55 रन प्लेस पवेलियन का ये आप नजारा देख रहे हैं। जानवी स्पोर्ट्स के करता धरता पंडित गुरवी जी मंच पर, सलीम भाई भी वहां पर नजर आते हुए अन्य मेहमानों के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। कुल मिलाकर 7वां दिन, क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों का दिन है आज का। बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहां पर कि किसको लाया जाए। समय में कॉपरेट करना है, और मेरे ख्याल से गेंदबाजी के लिए लैलेश को बुलाया गया है। आप क्रिकेट एंडलेस देख रहे हैं, और लैलेश गेंदबाजी के लिए देखना है कोई एफर्टलेस गेंद आती है या कोई एफर्टलेस शॉट आता है। लेकिन शाहिद खान का विकेट सारे इंडियंस के लिए जरूर प्राइजलेस है। जी हाँ, अनमोल है। एक लंबी पारी खेल रहे आज शाहिद खान। 24 पर बल्लेबाजी करते हुए 12 पर खेल रहे कलीम
2 छक्कों की सहायता से। डिप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी नजर आता हुआ, एक लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग और 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर साइड में। शाहिद खान ने जो अब तक बल्लेबाजी की अजय गरत बिल्कुल गेम प्लानिंग के तहत की। ललेश अपनी पहली गेंद लेकर स्लॉक किया था, लेकिन एलिवेशन पर्याप्त नहीं था, स्ट्रोक के पीछे बाउंस पर पहुंची, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, 1 रन के लिए। जी हाँ, सही प्लानिंग वहां पर नजर आ रही है शाहिद खान की। उन्होंने भी देखा कि पिछले कुछ मुकाबलों में उनके आउट होने के बाद पारी लड़खड़ा गई है, आज कहीं ना कहीं सोच कर आए हैं कि पूरे ओवर्स खेलने हैं। कलीम के काफी सपोर्टर्स हमारे बाईं ओर है। कलीम जब स्ट्राइक पे आते हैं तो एक शोर उभरता है। जुनैद हमारे बीच जुड़ते हुए, उस्मान मामू के भांजे, आपका इस्तेकबाल है। कहीं ना कहीं रवीश का आना बाकी है। यहाँ से जरूर शाहिद खान शायद चाह रहे होंगे कि कुछ क्विक रन्स बने। जी हाँ, आप तो लाइसेंस है, 8 विकेटें हाथों में है। थोड़ा सा धीमा डाला था, अंदर लगी है बल्ले के आउटफील्ड में। जब तक फील्ड किया जाता केवल 1 रन, सिंगल से रन बनते हैं तो ज्यादा परेशानी सहारा इंडियंस के कैप्टन को नहीं होगी यहाँ से। Yes, 2 very good ball from Lailesh. He given away only 2 runs in previous 2 balls. Very shorty supporters of Janvi Sport left of us. Shahid Khan on quarter century. He's on 25. He played a superb knock in Agri Raja Cup Pimplas, made 29 runs. And have a look at that, Raju. Raju is there, shorting Raju. With Chaudhary is there, and Pollard also watching from stand. Shorty supporters. लुत्फ उठाते हुए उछाल दिया है शाहिद खान ने, 6 रन मिलेंगे। बढ़िया शॉट। आपको मैंने कहा था कि अब शाहिद खान अपने बाजुओं को खोलेंगे, क्योंकि वक्त भी हुआ है और 8 विकेट जब आपके पास है। क्या गजब का शॉट खेला है, फॉलो थ्रू कितना अच्छा है शाहिद खान का। गेंद बल्ले की बीचों बीच टकराई थी, उस पे मोहर थी 6 रनों की। पहले ही अपने आप को ऑफ स्टंप पे लाए, स्वंग कर दिया ऑन साइड पे, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती भी 6 रन। 31 पे बल्लेबाजी कर रहे शाहिद खान, 2 सिक्सर और 3 चौके अब तक लगा चुके हैं। लंबा और ऊंचा स्ट्रोक था शाहिद खान का। हालांकि वापसी शाहिद खान ने की थी लगभग 5वें कप में, जब एमजे ट्रॉफी यहाँ खेला जा रहा था, 6ठे कप में। लेकिन वहीं से हालांकि अपने वापसी में उस सीफर पे आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद अगड़ी राजा कप में सिक्सर की पहली हैट्रिक उन्होंने लगाई थी। अब जोखिम उठाते हुए, और जोखिम उठाना इस समय लाजमी भी है। फिर से उछाला है, एक और सिक्सर। अगर ये शाहिद खान सीजन के आखिर तक रहे तो बड़ी बड़ी टीमों के सामने चुनौतियां पेश करेंगे। पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर थे, फिर से स्वंग कर दिया, 6 रन। सिक्सर की हैट्रिक पर हैं, अगर अंजाम देते हैं तो फिर जावेद फारूकी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। गजब की टाइमिंग कर रहे हैं, गजब का गेंदों को पढ़ रहे हैं। एक ही तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है लैलेश की, प्रेडिक्टेबल हो गए बहुत। बिल्कुल है, एंडलेस क्रिकेट में एफर्टलेस बल्लेबाजी शाहिद खान की। 37 पर पहुंच चुके हैं। ये बेहतर गेंद, स्वीप करने की कोशिश, देखना है बल्ले से है या नहीं। रन पूरा किया, लेग बाय। 37 पे बल्लेबाजी कर रहे शाहिद खान अब तक तालुका क्रिकेट में 10 अर्धशतक लगे, 3 किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख ने और 2 काले रत्न नंदन पाटिल ने। रन संख्या 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। यह साझेदारी एक लंबी साझेदारी होती हुई 43 रनों की साझेदारी हो चुकी है कलीम और शाहिद खान के बीच में।
तीसरे विकेट के लिए। पंद्रह रन इस ओवर से आ चुके हैं अभी तक। लैलेश अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर पेविलियन छोर से। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, निशाना चूकता हुआ और अब रन के लिए जाना चाहते हैं आखिरकार कलीम। ओहो, ये क्या हो रहा है? आउट, आउट तो होना ही था उनको। सभी हंस रहे हैं, खिलाड़ी भी हंस रहे हैं कि ऐसा नाटकीय क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलता है। ड्रामेटिक। ये देखिए समीर तांगड़ी अभी तक मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बचपन में खेले हुए कंचे गोटियां सभी खिलाड़ी भूल गए हो। समय में कोऑपरेट करना है प्लीज। ये देखिए बहुत ही पॉपुलर कप्तान रवीश बल्लेबाजी को जा रहे हैं। साझेदारी टूट गई। कैप्टन रवीश मैदान में आए हैं और दर्शकों का शोर उभरता हुआ। टेलीविजन सेट पर ये शोर भी कहीं ना कहीं दर्शक सुनेंगे कुछ दिनों बाद। यस, और ऐसा मुझे लग रहा है कि बाली ट्रॉफी जब होगा तो जो माइक्स रहते हैं स्टैंड में वो लगा दिए जाएंगे। जी हाँ, स्टंप के अंदर भी माइक्रोफोन रहता है, वो भी शायद हो सकता है जिससे हम जो बल्ले की आवाज सुनते हैं वो भी दर्शक सुनेंगे टीवी सेट पर। ये देखिए अहमद बलेरे पानी लेकर गए थे कुछ बताने के लिए शाहिद खान को कि आप 6 ओवर क्यों खेल रहे। शानदार पारी अभी तक शाहिद खान की रही है। 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। याहिया खोत हमारे बीच में है जो कि एंजॉय कर रहे हैं बल्लेबाजी को। बहुत खूबसूरत कैच लिया था बालाजी में खेलते हुए नवाब के सामने मिड ऑफ पे। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है शाहिद खान का, 200 से ऊपर है। 16 गेंदों में 37 रन, 3 चौके और 3 छक्के। देखना है, एक ही सवाल है कि क्या शाहिद खान अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और लगेगा तो फिर 11वां अर्धशतक। यानी कि वो यदि अर्धशतक पूरा करते हैं तो स्कोर 80 से आगे जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि अभी भी 13 रन उनको चाहिए अर्धशतक के लिए। स्कोर इस समय 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 43 रनों की साझेदारी रही तीसरे विकेट के लिए। समय में पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है सारा इंडियंस को। मैच की पहली गेंद, फुल टॉस, स्वंग कर दिया, 6 रन। पहुंच गए 43 पर शाहिद खान। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लूजनर गेंद थी, पूरा फायदा उठाया और गेंद को स्वंग कर दिया 6 रनों के लिए। ये देखिए बहुत ही गजब का शॉट। आज शाहिद खान एक गेंद को हम निकाल दे तो सभी गेंदें बल्ले के बीचों बीच टकराई। ये जताता है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। 3 चौके और 4 मैक्सिमम्स। तेज तर्रार पारी। महेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। एक और, ये भी जाएगी बाहर। एक और मैक्सिमम। मैं समझता हूं कि डेपुटी मेयर कप में खेली जाने वाली ये सबसे अच्छी इनिंग है जो इस वक्त शाहिद खान खेल रहे हैं। 49 पे हैं, 1 रन चाहिए अर्धशतक के लिए और अगर ये लगता है तो तालुका क्रिकेट में इस सीजन में 11वां अर्धशतक लगेगा। ज्यादा छोटी गेंद नहीं थी लेकिन बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी लेकिन जब आप फॉर्म में चलते हैं तो यही नतीजे आते हैं। जी हाँ, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर पहुंच चुका है शाहिद खान का इस समय। और जानवी स्पोर्ट्स का भी आत्मविश्वास बढ़ा होगा इस पारी से। और पूरे सीजन में ये स्कोर बोर्ड पे ऐसा लग नहीं रहा है कि जानवी का स्कोर है। जो टीम अंडर 50, अंडर 60 रह रही थी 81 पे पहुंची। छक्कों की हैट्रिक पर, अर्धशतक से 1 रन दूर। स्वीप किया, गैप में खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। 50 रन पूरे शाहिद खान के। अर्धशतक पूरा किया है शाहिद खान ने, जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो रहा है।
डेप्यूटी मेयर कप की बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी शाहिद खान के नाम तालुका क्रिकेट में लगने वाली ये 11वीं हाफ सेंचुरी है। 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए हैं। एक यादगार पारी शाहिद खान की, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल। गजब की पारी। अब 3 गेंदें शेष है। 13 रन दे चुके इस ओवर में अभी तक महेश। आज कोई भी गेंदबाज ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। अभी ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट लिया था। लोअर फुल टॉस मोड़ दिया ऑन साइड में। अच्छा शॉट है लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी 1 रन। रविश ने अपना खाता खोला इस सिंगल से। वो भी खुश रहेंगे कि शाहिद खान फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। और इनिंग की तुरंत समाप्ति के बाद जानवी आपको अपना फील्ड सजाना है, क्योंकि जुमा बाद आप देखने जाएंगे तीसरा क्वार्टर फाइनल एनआर बनाम विहान मित कुमार। 84 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शॉर्ट पिच गेंद, टॉप एज, गेंद हवा में लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए। कोशिश भरसक रही थी किरण की, दूसरे की कोशिश हो रही है। अपील वहां पर और शाहिद खान रन आउट। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के बाद 51 रन बनाकर रन आउट होते हुए शाहिद खान। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। राजू और उनके सहयोगियों की तरफ से जोरदार उनको दाद दी जा रही है। ही प्लेड अ सुपर्ब नॉक। ये शॉट गलत खेला था, पहला शॉट उन्होंने गलत खेला, हालांकि पॉइंट सर्कल के अंदर था, चाहते तो उसे स्क्वायर कट खेल सकते थे। जी हाँ, समय काफी था। गेंद घूमी जरूर थी लेकिन काफी शॉर्ट पिच गेंद थी। अच्छा क्षेत्ररक्षण और अच्छा थ्रो। 51 रन बनाने के बाद आउट हुए शाहिद खान। एक शानदार पारी का खात्मा हुआ। इस टूर्नामेंट में लगने वाला तीसरा अर्धशतक। इससे पहले नंदन पाटिल ने अर्धशतक जड़ा था, 51 रन बनाए थे। सूरज किणे ने 74 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, 73 रनों की 73। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन। और अब शाहिद खान। आखिरी गेंद पारी की। मेमन ने हुक कर दिया है, 6 रन। क्या बात है, मूड को सही कर डाला कप्तान के, जो नॉन स्ट्राइक पर थे। छोटी गेंद थी, बैक फुट पे गए थे शहबाज मेमन। बहुत ही क्लासिकल हुक, 6 रन। 51 रन बने और 52 रनों की चुनौती रखी है सारा इंडियंस के सामने। जानवी स्पोर्ट आपको अपना फील्ड तुरंत सजाना है। जुनेद और हाजी को आप देख रहे हैं। पहली मर्तबा पंडित गुलवी को मैं इतना खुश देख रहा हूं। अवसर ही वैसा है ना, 91 रन बनाए हैं नहीं, टीम ने। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी टीम उन्होंने बहुत परफेक्ट चुनी है, लेकिन ग्राउंड पे हमेशा वो टीम ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। सेमीफाइनल जरूर खेली थी आगरी राजा पिंपलास में, और देखना है कि यहाँ पर सेमीफाइनल के दौर को खोलती है नहीं। ये नहीं भूलना चाहिए कि दिलीप पाटिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और हरीश ठाकरे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जब लक्ष्य रहते हैं अजय गरत, तो आपको बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई करना होता है। जी हाँ, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ती है शुरुआत से ही, और ऐसे में कई बार विकेटें गिरने की संभावनाएं बन जाती है, जो हमने कई बार देखा है जब किसी टीम ने बड़े स्कोर का पीछा किया है, खासतौर पर मैंडेटरी पावर प्ले में विकेटें गिरी है। एक अच्छा मैच यदि यहाँ से बनाना है अभी दिलीप पाटिल एंड कंपनी को, सारा इंडियंस को, तो मुझे लगता है कि मैंडेटरी पावर प्ले के जो दो ओवर्स है उसमें कहीं ना कहीं 25-30 रन जरूर चाहिए। शैलेश गायकवाड़ ने मापोली से शाहिद खान को अर्धशतक के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। हमारे अंपायर साहब को मैदान में जाना है।
ठीक अब से लगभग 10 मिनट के बाद ग्राउंड कमेंट्री म्यूट की जाएंगी। आप हमारी आवाज़ सिर्फ टेलीविज़न से यूट्यूब पे ही सुन सकते हैं। सारा इंडियंस ओपनर भेजना है प्लीज। So Sara Indians needing 92 to victory. The asking run rate is more than 15. Very healthy indeed, and lot of depend on mandatory power play. There is a heavy breeze running over the ground, and you are watching Cricket Endless Deputy Mayor Cup 2017. Welcome everybody wherever you are, from Amir Sheikh, Deputy Mayor Ahmed Sheikh, Amir Siddiqui and Haji Sheikh. First match, Balaji Sports won the match. Nice telecast, today's tally. Second going on in red color and 2 quarter-final left. Prince Movies high quality telecast comes to you. A nice mixing and nice camera work is going to be two openers on the ground. Avi and Samir Tangdi is going to be Abu Saad, who is a very successful bowler so far, but I think Wasim, one of the trump card bowler of Janvi. And Janvi, please cooperate us as far as time concerned. Shahid Khan adjustment in the field. There is a wideish long on. Firoz is there, and man at mid wicket. Here goes Abu Saad. First ball. Drive, good looking stroke. First bounce, chance of run out. Oh, he missed the opportunity. And lucky for Avi. Straight to mid off. Fine return from Rohit, but missed the opportunity from Abu Saad. That was firmly driven, but straight to the fielder at mid-off. And have a look at that. Opportunity goes begging. Oh, it's very lucky. Ball hit the stump. But base is not off. Here goes Abu Saad. Goes to Samir Tangri. Reverse shot in the air. Yes, he's out, caught by Kalim at short term, and Salim Tangri on his way. A very disappointing performance from Samir Tangri. He tried to play a reverse shot, top of the bat, simple catch for the fielder at short third man. Kalim made absolutely no mistake there. New batsman in, Ananta Kenny. One for the loss of 1 wicket. Sara Indian chasing a target of 92. This is the poor reply. Abu Saad having a word with Shahid Khan. Captain Ravish is the wicketkeeper. 2 men outside the ring. Firoz at wide long on, and man at mid wicket. I think Asif Nana. Here goes Abu Saad, facing him batsman Avi. Goes to Avi, use the short back leaf in the air. Oh, what a catch taken by Rohit, one-handed left to him. And finally, second wicket has fallen now. And this is magic, absolute magic. One-handed catch, brilliantly taken. Again, firmly driven shot it was. Look at that, ball stuck into his left hand. Back to back 2 wickets. Abu Saad is on hat-trick. Sara Indians in deep trouble, 1 for 2.
Yes, I think all kind of trouble. There is a light cloudy sky, but heavy cloud covering over the batting of Sahara Indians. One for the loss of 2 wickets. New batsman in Lakhan. In this season, not a very good time for Lakhan. There is a cheering supporter like Raju with his friend, with Pollard and Najish Lalu, Asif and Chaudhary watching from his stand. Here goes Abu Saad. Left arm over the wicket. Oh, fine delivery. Keeping slightly low around the off stump. And half-hearted stroke from Ananta Kenny. Try to open the pace of the bat there. No width given by Abu Saad. He tried to play close from his body. Tried to tap test ball. Beats him outside the off stump. Past the edge. Abu Saad ball firmly driven. Picks on the off volley. Asif Nana is there. In comes return. Could be close. But this is the worst thoughts from Abu Saad. Because Abu Saad is staying in front of wicket. Not a good tactic used by Abu Saad. He is staying in front of wicket. Try to collect the throw. And second time in this over, he did not collect the throw. Very lazy indeed from Abu Saad. Not a fully fit for this match. 3-2 total now. Score moves up to 4 for the loss of 2 wickets. Abu Saad. Left arm over the wicket. Facing him batsman Lakhan. Hard striker of the balls. Balls to Lakhan. Use his feet. I think drop by wicket keeper. Half chance is there. Inside edge of the bat. And that marks end of the very good over from Abu Saad, who given away 4 runs and claimed 1 wicket. 2 wickets. एक ओवर की समाप्ति 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। जानवी स्पोर्ट समय में हमें कोऑपरेट करे प्लीज। देखना है कि उस छोर से किसको बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए। वसीम को बुलाया गया है। पिछले साल के 15 जो टॉप गेंदबाज थे सक्सेसफुल, उसमें 13 गेंदबाज अपना बहुत पसीना बहा रहे हैं और कहीं ना कहीं नीचे गिराफ उनका गिर चुका है। सिर्फ वसीम और सूरज जोशी 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो आज भी पिछले साल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यूसुफ इस वक्त YouTube पे मैच देख रहे हैं राजस्थान में जानवी के। खेल की शुरुआत होती भी बहुत अच्छी गेंद, लहराती बल खाती अपील कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। बॉडी को ब्रश करती हुई गेंद पहुंची थी। बहुत खूबसूरत गेंद से शुरुआत करते हुए वसीम। ये देखिए अच्छा निर्णय अंपायर का। बिल्कुल सही डिसीजन। बहुत मुश्किल है ऑन साइड में खेलना इस तरह से इस गेंदबाज को। आर्म भी उनका छोटा है, उनकी गेंदें ज्यादा उठती भी नहीं है, बैठ जाती है। फिर से अच्छी गेंद अगेंस्ट दी टर्न खेला, गेंद हवा में। शाहिद खान ने एक आसान सा कैच पकड़ा, आउट हो गया अनंता केनी। 4 रन और 3 विकेट। पूरी तरह से बैकफुट पर सहारा इंडियंस। ऐसे लग रहा है कि पहले ही जो इनिंग खेली गई वो कोई और पिच पे खेली गई हो, जिस तरह से यहां पर विकटें जा रही है। चार रन 3 विकेटों के नुकसान पर सहारा इंडियंस। नए बैट्समैन पिछले मैच के हीरो, सिक्सर का हैट्रिक भी लगाया था, हरीश ठाकरे बल्लेबाजी को आए हैं। स्थिति काफी नाजुक है, विकेटें लगातार गिर रही है और लक्ष्य पहाड़ जैसा है। वसीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मरतबा फिर से ऊपरी सीधा, लेकिन कोशिश रायगा जाती हुई वहां पर कलीम की कैच छूटता हुआ 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। लखन इस सीजन में बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, चाहे उनकी गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो।
हालांकि जब वो सिटी क्रिकेट में आए थे तो काफी फेमस हुए थे, लेकिन इस सत्र में कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म, जैसा कि आपने कहा। एमएलए ट्रॉफी से काफी फेमस हुए थे वो जब सिटी क्रिकेट में उन्होंने कदम रखा था। इस मर्तबा छोड़ दिया वाइट। 7 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। वसीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन लखन। इस मर्तबा फोर्स किया बैकफुट पे जाकर सीधा फील्डर के हाथ में। आखिरकार लखन आउट। कोई गलती नहीं की वहां पर डीप में रविश ने। दूसरा झटका इस ओवर में लगाते हुए वसीम। ये मैच हाथ से निकलता हुआ सहारा इंडियंस के। बहुत ही अच्छा कैच, 30 स्ट्रोक था। बिल्कुल, मैच जब भी हाथ से निकला था जब 90 के ऊपर रन बने थे, और उसके बाद रही सही कसर बल्लेबाज पूरे कर रहे हैं। 6 रन 4 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन दिलीप पाटिल, जो इस सीजन में गोल्डन 6 लगा चुके हैं, बल्लेबाजी को आ रहे हैं। 2 रन बनाकर आउट हुए लखन। आउट होने वाले बल्लेबाजों में अभी आउट हुए थे सबसे पहले 1 रन, उसके बाद पहले समीर तंगड़े आउट हुए थे, अभी दूसरे बैट्समैन आउट हुए थे। समीर ने खाता नहीं खोला। 3 रन बनाकर आउट हुए अनंता केने और लखन 2 पर। वसीम बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मर्तबा फ्लैश स्क्वायर कट। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को। 4 रन। कमजोर गेंद थी, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए हरीश ठाकरे। पहला चौका लगता हुआ इस सहारा इंडियंस की पारी में। काफी जगह दे बैठे थे। बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, फ्लैश स्क्वायर कट खेला था, जगह दी थी वहां पर। 4 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 11 पर 4 विकेटों के नुकसान पे। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। छोटी गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया। 4 रन। ये हरीश ठाकरे हैं जो इन फॉर्म बैट्समैन है। 2 गेंदों पे आखिरकार 2 चौके लगाने में सफल हुए। 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर में अभी बहुत लंबा फासला तय करना है। 77 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों भी इनफॉर्म बैट्समैन है इस समय क्रीज पर। ये देखिए, संतुलन थोड़ा सा गंवा रहे थे, लेकिन खाली क्षेत्र में खेल दिया था बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके हरीश ठाकरे ने जड़े। 2 ऐसे बल्लेबाज है क्रीज पर जो अभी भी क्षमता रखते हैं कि संघर्ष काफी कर सकते हैं सहारा इंडियंस के लिए। यहाँ से अबू साद को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे बैट्समैन दिलीप पाटिल। स्कोर है 14 रन 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 15। ये देखिए, मुस्कुराहटे जरूर है लेकिन नुमाइशी। सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ आज सुबह से ही आसमान में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। अबू साद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन दिलीप पाटिल। पॉइंट को अंदर बुलाया गया है। अबू साद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा ब्लॉक आउट में गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला, मिड ऑन पर रन के लिए निकल पड़े। खाता खुला दिलीप का। स्कोर 16 पे पहुंचा 4 विकेटों के नुकसान पे। स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है जानवी स्पोर्ट्स की। यहाँ से तो कैप्टन नहीं चाहेंगे कि कोई ढील दे। ठंडी हवाएं मैदान पे बह रही है। परछाइयां पूरे इलाके को अपनी बाहों में समेटती हुई। अबू साद मुड़ते हुए इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। हरीश ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता कि गेंदबाज कौन है, वसीम है या अबू साद है।
वो अपने कप्तान को शाद करते हुए, खुश करते हुए इस सिक्सर से। शानदार बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदें खेली है उन्होंने, 2 चौके और 1 सिक्सर। उनके इरादे काफी खतरनाक नजर आते हुए। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कितने विकेट गिरे हैं, परिस्थितियां कैसी है, वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए। ये अच्छी सोच है और हम जीतू भोईर को वेलकम कहते हैं। इस मरतबा बैकलीफ को नीचा किया, धीरे से गेंद को पुश किया ऑफ साइड में। जीतू भोईर ने इस वक्त जानवी स्पोर्ट्स को बिनार से ऑल द बेस्ट कहा है। जुड़ गए हमसे, आपका इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत। सबसे ज्यादा क्रिकेट लवर्स हैं और देर से जागे, जहां जागे वहीं सवेरा। गुड मॉर्निंग जीतू भोईर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश, सवाल पूछा था वहां पर, गेंद नीची रही थी, बैकआउट ऑफ द पॉइंट उठाया था लेग बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए, फ्लिक करना चाहता, लीडिंग एज लगा था, बल्ले का मुंह पहले ही बंद कर दिया था। फिर से हरीश ठाकरे ने गेंद को लिफ्ट कर दिया, फील्डर शहबाज मेमन, कैच भी छूटा, मौका भी दिया और चौका भी दिया। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गेंद जब लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे आती है क्यों दिखाई नहीं देती है, एक सवाल उठता हुआ। फिर से उनको गेंद नहीं दिखी थी। व्हाइट कलर की गेंद होती तो ये समझा जा सकता था, लेकिन हेवी येलो कलर की ये गेंद है, दिखाई देनी चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत से खिलाड़ियों को गेंद ठीक तरह से दिखाई नहीं देती। खास तौर से लॉन्ग ऑन के जो स्ट्रेटर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी हैं, उनको गेंदें नजर नहीं आती है अगर गेंद ज्यादा देर तक आसमान में रहे। एक बात है कि स्काई ब्लू आसमान इस वक्त व्हाइट है। इस मरतबा फिर से ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत स्ट्रोक गैप में 4 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं हरीश ठाकरे। 4 चौके, 1 सिक्सर अब तक लगाया है और कुल मिलाकर कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 23 पे 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या खूबसूरत शॉट है। तीन ओवर 32 रन, लेकिन हरीश ने, ठाकरे ने बता दिया है कि मैच बिल्कुल चला नहीं गया है। मैच को चला सकते हैं और चला रहे हैं, और अगले 3 ओवर में कैसा चलेगा ये आइए सुनते हैं अजय गरज से। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे। बचे हुए 3 ओवर्स में 60 रन चाहिए सहारा इंडियंस को। मैच समरी अभी तक की हम देखें तो टॉस जीता था सहारा इंडियंस ने, गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। शाहिद खान की शानदार 51 रनों की पारी केवल 20 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके जड़े थे। 15 रन बनाए थे अहमद बलेरे ने, 13 रन कलीम ने जोड़े थे, जिसकी बदौलत 91 रन बनाए थे सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर अपने 6 ओवर्स में जानवी स्पोर्ट्स ने। जवाब में खराब शुरुआत रही सहारा इंडियंस की, पहले 4 विकेट केवल 7 पर गिरे। अब 25 रनों की साझेदारी हो चुकी है दिलीप पाटिल और हरीश ठाकरे के बीच में। वसीम आक्रमण जारी रखते हुए हाजी समद से 10 से। बढ़िया गेंद, पूरी लंबाई की, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। क्रीज बॉक्स में से ही बल्ला चलाने की कोशिश, बीट हुए दिलीप पाटिल। 17 गेंदें और 60 रन चाहिए, कठिन समीकरण है। मैंडेटरी पावर प्ले में जो बल्लेबाजी होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। 2 विकेट्स ले चुके हैं अभी तक वसीम इस पारी में। इस बार अंदर की तरफ लाए, बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद के ऊपर से खेलते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश ऑन साइड में। लगातार 2 डॉट बॉल्स, दबाव यहां पर बढ़ता हुआ दिलीप पाटिल पर। दिलीप पाटिल ने पहले मैच में मैच जिताऊ पारी खेली थी मैगी ए के विरुद्ध। इस बार पुल कर दिया है, बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन। आखिरकार अपना मौका ताड़ते हुए दिलीप पाटिल। थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे।
निरंतरता के साथ अब ऐसे स्ट्रोक्स खेलने होंगे। जिस तरह से हरीश ठाकरे बल्लेबाजी कर रहे हैं वैसी ही बल्लेबाजी अब दिलीप पाटिल को भी करनी होगी यदि मैच को जीतना है तो, क्योंकि आवश्यक रन रेट जो है वो 20 के आसपास घूमता हुआ। अच्छा शॉट था, बहुत ही गजब का स्ट्रोक, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया था। जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया घूम गए गेंद को लेकर 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम का। पर्दे के पीछे बैनर्स लगे हुए हैं। गेंदबाज को कुछ समझाते हुए दो खिलाड़ी वहां पर। ये ऑन साइड की फील्ड आप देख सकते हैं, ऑफ साइड की बल्कि, दिलीप पाटिल के लिए। वाइडिश डिपिश गली में एक खिलाड़ी है, एक शॉट थर्ड मैन और एक शॉट फाइन लेग। इस बार ड्राइव किया है, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ शॉट, जब तक थ्रो करते उठाकर शहबाज मेमन 2 रन पूरे किए। अब 8 रन इस ओवर से आ चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें शेष है। बड़ा ओवर चाहिए तो बड़ा शॉट खेलना होगा। लेकिन बड़ी बात है कि दोनों के बीच में अब तक 33 रनों की पार्टनरशिप बनी है, हरीश और दिलीप के बीच में। 9 पर दिलीप पाटिल और 23 पर हरीश ठाकरे। ओवर पिच गेंद उछाल दिया उसको, ग्राउंड के अंदर ही है। स्कायर, अच्छा कैच। कैप्टन रवीश ने दूसरा कैच लिया इस पारी में, बढ़िया फील्डिंग। साझेदारी टूटती हुई, सहारा इंडियंस को लगने वाला एक और बड़ा धक्का। 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर दिलीप पाटिल लौटते हुए 9 रन बनाकर। ताकतवर शॉट खेला था लेकिन ज्यादा ऊपर चली गई थी। ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप पर। बैट्समैन की कोशिश थी कि बाउंड्री को पार किया जाए। वाइड ऑफ मिड विकेट खेला था, अच्छा कैच वहां पर। ऐसे कैचेस आसान नहीं होते जब गेंद ज्यादा ऊपर चली जाती है। नए बैट्समैन मैदान में, राजू। पिछले मैच में राजू ऊपर खेले थे, सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेले थे, लेकिन इस मैच में नंबर 7 पर आए हैं। स्लॉग करने की कोशिश, बढ़िया गेंद। ये आदर्श लाइन है, ऑफ स्टंप के बाहर। लेंथ भी काफी अच्छी, फुलर लेंथ। रफ्तार आपके पास अच्छी हो तो फिर बहुत मुश्किल बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट्स खेलना ऐसी गेंदों पर। ओवर समाप्त हुआ चौथा, 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 2 ओवर में 52 रन चाहिए, बहुत ही मुश्किल काम नजर आ रहा है सहारा इंडियंस के लिए। आज सहारा इंडियंस की ओर से सफल गेंदबाज मैं कहूंगा कि आ भी रहे थे। 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया। किफायती गेंदबाजी भी की और सफल भी रहे। उनके अलावा कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाया। महेश ने 1 ओवर में 21 रन खर्च किए, लैलेश ने 1 ओवर में 15 और किरण 2 ओवर में 37 रन। दूसरी तरफ हम जानवी की गेंदबाजी अभी तक देखें तो बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। अबू साद थोड़े से महंगे जरूर रहे, 21 रन दिए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की उन्होंने। वसीम ने 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट, बल्कि 3 विकेट्स वसीम के नाम। दोनों भी गेंदबाज सफल रहे हैं। यह फर्क होता है, जब आप विकेटें निकालते हैं तो फिर ज्यादा तेज गति से रन बनना मुश्किल हो जाता है। कलीम और शाहिद खान के बीच में तीसरे विकेट के लिए 43 रनों की बहुत ही शानदार साझेदारी हुई थी। गेंदबाजी में परिवर्तन, आसिफ नाना आते हुए। पहली गेंद लेग ब्रेक, काफी घुमाव वहां पर, वाइड का इशारा, कुछ ज्यादा ही टर्न था। आसिफ नाना ऐसे गेंदबाज है जो तेज भी डालते हैं, स्पिन भी करते हैं, लेग कटर्स, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं।
इस बार रिवर्स खेलने की तैयारी में थे, जाने दिया उसको। पहले ही स्टांस चेंज किया था जिसकी वजह से अंपायर ने वाइड घोषित नहीं किया। राजू है स्ट्राइक पर। इस बार तेज गेंद बोल्ड हो गए। आसिफ नाना को मिलने वाली पहली सफलता। निराश होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ राजू खाता नहीं खोल पाए। पूरी तरह से संकट में सहारा इंडियंस। ये देखिए तेज गेंद शफल करते हुए खेलने का प्रयास किया था, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लगी, एक ही बेल निकल गई थी, लेकिन काम पूरा होता हुआ, काम तमाम होता हुआ वहां पर राजू का। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन करण। इकतालीस रन 6 विकेटों के नुकसान पर सहारा इंडियंस। दस गेंदों में 51 रनों की जरूरत, यानी कि हर गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए, चौका या फिर छक्का। आसिफ नाना यहाँ पर और कुछ विकेट्स निकाल सकते हैं, स्थिति कुछ वैसी ही है। बल्लेबाज जरूर बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे। आसिफ नाना इस मर्तबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में फुल पे लिया। एक रन बनता हुआ, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा सहारा इंडियंस का। 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 5वां ओवर चल रहा है। बोल्ड अराउंड द लेग्स। लेग ब्रेक गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, टर्न होकर अंदर आई और काफी ज्यादा शफल किया था हरीश ठाकरे ने। एक और बहुमूल्य विकेट का पतन। ये देखिए तेज लेग ब्रेक, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 42 रन 7 विकेटों के नुकसान पर हरीश ठाकरे अच्छा खेल रहे थे, 23 रन बनाकर आउट हुए। अब तो यहां से जानवी स्पोर्ट्स की विजय पक्की है। जी हाँ, मैच में अब कुछ खास बचा नहीं है, केवल औपचारिकताएं बची है। महेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जो अपनी गेंदबाजी के लिए मूलतः जाने जाते हैं, लेकिन आज काफी महंगे रहे। 21 रन उन्होंने खर्च किए अपने ओवर में, पारी का आखिरी ओवर किया था। जानवी स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में पहुंचने की तैयारी में। आज पहले मैच में बालाजी स्पोर्ट्स ने अहमद स्पोर्ट्स को मात दी थी, सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बहुत दिनों बाद इस तरह का प्रदर्शन जानवी स्पोर्ट्स का देखने को मिला है। धीमा डाला था, ऑफ कटर, बल्ले पर नहीं ले पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं आसिफ नाना, केवल 2 रन खर्च किए अपने ओवर में। आखिरी गेंद फिर से धीमी गति की ऑफ ब्रेक गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी आसिफ नाना की। सफल ओवर समाप्त होता हुआ 42 पर 7 सहारा इंडियंस। ये निराश खेमा सहारा इंडियंस का। आज गेंदबाजों ने काफी निराश किया, और जब 6 ओवर में आप विपक्षी टीम को 90 से ज्यादा रन देते हैं तो फिर आधे से ज्यादा मैच वहीं पर हार जाते हैं। नेवर की शुरुआत, स्लॉग किया डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, अच्छा कैच, एमएच बलेरे कैच लेते हुए। एक और झटका सहारा इंडियंस को। कैप्टन लौटते हुए पेवेलियन की तरफ।
सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे थे। कैप्टन करण 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। 8 विकेटें गिरी है। अब औपचारिकता ये है और रोचकता इसी बात में है कि क्या जो 5 गेंदें बची है वो खेल पाएंगे या नहीं आखिर के बल्लेबाज। बहुत बढ़िया गेंद। सभी गेंदबाजों ने विकेट्स लिए हैं। 2 विकेट्स अबू साद के खाते में, 3 विकेट वसीम के नाम, 2 आसिफ नाना के और कलीम के खाते में अभी तक 1 विकेट। फुल टॉस थी, लेकिन अब टेल एंडर से क्या उम्मीद की जा सकती है जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया। लैलेश स्ट्राइक पर, बाहर की तरफ निकाला, लेट हो रहे अपने स्ट्रोक में। एक और डॉट बॉल। एक डबल विकेट मेडन हमने देखा है इस टूर्नामेंट में। जो उमर खान ने किया था एच स्पोर्ट्स के, इस ओवर में पहला रन आखिरकार बनता हुआ। अब केवल एक गेंद बची इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मर्तबा इन्होंने भी लगभग गेंद को अपने सामने ही पटका था। बहुत ही ह्यूज मार्जिन से जानवी स्पोर्ट ये मुकाबला जीत रही है और इसके साथ ही जानवी ने मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन पंडित गुलवी, द जानवीज कैप्टन, रविश एंड जानवी स्पोर्ट, हार्ड लक करण, हार्ड लक बबन पाटिल, हार्ड लक सारा इंडियंस। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है शाहिद खान। शाहिद खान आपको तुरंत आना है। मैन ऑफ द मैच। 51 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली शाहिद खान ने और सिटी क्रिकेट में 11वां अर्धशतक शाहिद खान के नाम जाता हुआ। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। मोहम्मद जोएब आपको रिस्ट वॉच देंगे। जुनेद ये गिफ्ट एम्पर आपको देंगे और असरार भाई आपको मिठाई देंगे। शाहिद खान एक छोटी सी, मैं समय कम है लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी जरूर आपके लेना चाहूंगा। फर्स्ट शाहिद खान, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक टुडे। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत देर के बाद बहुत बढ़िया इनिंग खेली। कहा जाता था कि शाहिद खान के आने से जानवी टीम की जो बल्लेबाजी है उसमें जान आ गई। आज अपने बहुत खूबसूरत इनिंग के लिए इसके पीछे क्या लगता है कि क्या गेम प्लानिंग था या क्या तय करके आए थे आप? बिल्कुल, गेम प्लानिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, बस अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है माशाल्लाह क्या अच्छी बल्लेबाजी हुई। ये हिसाब से कि हम लोग चाहते थे कि कोई एक बैट्समैन रुक के खेले और यही कोशिश रही थी मेरी भी कि मैं ओपनिंग में जाऊं तो ज़रा ज़्यादा खेल के आऊँ ताकि अच्छी बल्लेबाजी हो सके। एमएस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, कलीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, सभी बैट्समैन का कॉन्ट्रीब्यूट रहा। यही कारण कि हम अच्छा टारगेट रख पाए और यही गुजारिश है सभी बैट्समैनों से कि अच्छी बल्लेबाजी करे ताकि टीम अच्छा खेले। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों समय कम है, हम आपके खिदमत में जुमा बाद हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।